Now we will discuss components of thin layer chromatography. We will see what are different components. And first part of the components, stationary phase. Stationary phase in TLC plates, they are prepared by mixing the adsorbent such as silica or alumina with small amount of inert substance like calcium sulfate and water. Calcium sulfate जो होती है ये जो एल्यूमिना है या सिलिका जो है उसको एक ग्लास प्लेट के साथ उसको स्टिक करने के लिए, उसको अटैच करने के लिए यूज की जाती है. तो इस तरह एक स्लरी जो बनती है एंड दिस स्लरी is used as stationary phase on the glass plate or some other type of plate. So this mixture is spread as a thick slurry on an unreactive sheet like glass sheet or some other type of sheet. Compound which fluoresces under UV may also be used so that we are able to see different spots in the plate. So हम ये जो हमने डिस्कस किया सिलिका या एल्यूमिना, इसको हम कैल्शियम सल्फेट के साथ मिक्स करके जब हम ये स्लरी बनाते हैं तो इसी के अंदर हम एक जो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है लाइक जिंक सल्फाइड या कोई और फ्लोरेसेंट मटेरियल इसको साथ मिक्स कर देते हैं ताकि मिक्सचर जब सेपरेट होता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स तो वो उस फ्लोरेसेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक हमें विजिबल स्पॉट जो है वो दे दे और हम उन कंपोनेंट्स को प्लेट के ऊपर जो है वो यूवी लाइट में ऑब्जर्व कर सकें. तो इन दिस वे दैट फ्लोरेसेंट सब्सटेंस मेक्स इट पॉसिबल टू सी दो स्पॉट्स अंडर यूवी लाइट. Plate is dried when it is prepared and then it is activated by heating in an oven. तो जब ऐसा एक प्लेट हम बना लेते हैं उस प्लेट को हम शुरू में ड्राई करते हैं और उसको हम ओवन में रख देते हैं और जैसे जैसे हमने प्लेट्स यूज़ करना होती हैं उनको हम निकालते हैं, उसको हम ओवन में हीट अप करके इसको हम कहते हैं प्री एक्टिवेट करते हैं और फिर हम उनको यूज़ कर सकते हैं. चॉइस ऑफ स्टेशनरी फेज डिपेंड्स ऑन द सैंपल विच यू वांट टू सेपरेट. सो हमने जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर यूज़ करनी है, वो हमने नॉन पोलर यूज़ करनी है. सो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सैंपल विच यू वांट टू सेपरेट. Now, mobile phase is in the form of some solvent, and this solvent takes up different components of a mixture as it travels by capillary action through the TLC plate. तो जैसे जैसे ये मोबाइल फेज ट्रेवल करेगी साथ उस मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट होंगे. So that is why it is so important. So selection of a good solvent system is very important and is very critical. TLC is started generally with a non-polar solvent such as Legroin. हम जब शुरू करते हैं हम किसी non-polar solvent से शुरू करते हैं और उसके बाद इसको हम replace करते हैं with some polar solvent. तो non-polar हम शुरू में यूज़ करते हैं जिसका हमें पता ना हो और उसके बाद उसको हम follow करते हैं with some polar solvent. So TLC started with some non-polar solvent followed by a polar solvent such as ether or ethyl acetate. And RR values should vary between 0 to 1. We already know RR values are calculated. So that is distance traveled by a component divided by the total distance traveled by the solvent. Separation that depends on solubility of the compound in a solvent. जाहिर है जो ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर या मोबाइल फेज के अंदर जो कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. एसिड्स, बेसिस और पोलर कंपाउंड्स दे रिक्वायर स्पेशल सॉल्वेंट कंपोजिशन. जाहिर है जब हमने एसिड्स की सेपरेशन करनी होती है, बेसिस की सेपरेशन करनी होती है, उनके लिए हम स्पेशल solvent composition जो वो यूज करते हैं. Now, spotting the plate. How sample is applied on the plate. Once the sample is prepared, the spotting capillary is used to add the sample to the plate. So, sample is placed on the TLC plate with the help of spotting capillary. हम उसको
किसी और तरह से अगर आप ड्रॉप ऐड करना चाहें तो ज़ाहिर है हम नहीं कर सकते, इसलिए कि उसमें इम्प्योरिटीज़ कंटामिनेशन आने का चांस होता है. तो वी यूज़ spotting capillary with the help of which that spot is placed on the TLC placed. Spotting capillaries must be extremely small so that we can make a small spot on the TLC plate. And what we do, we simply touch the end of the capillary tube at the start line of the plate. So एक हम जो प्लेट तैयार करते हैं उसमें एक हम स्टार्ट लाइन बनाते हैं विद हेल्प ऑफ पेंसिल और सम अदर मार्कर, और स्टार्ट लाइन के ऊपर हम स्पॉट जो बनाते हैं, और ये जो स्पॉट लाइन होती है दैट शुड बी अबव द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब स्पॉट बनाएं तो वो सॉल्वेंट के अंदर डिप हो जाए. अगर ऐसा होगा तो जो मिक्सचर होगा जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, और फिर हमें सेपरेशन जो है स्पॉट्स की फॉर्म में नहीं हो सकता, हमें स्ट्रीक की फॉर्म में या इस तरह एक इनएडिक्वेट या इनएफिशिएंट सेपरेशन जो वो हो. सो जो स्पॉट होगी, जो स्पॉटिंग होती है, दैट शुड बी at the start line of the plate and that should be above the solvent level. Smearing, smudging and spot that overlap will result in inefficient separation. So we have to make separate spots for each mixture on the plate on the start line. जाहिर है वो जो स्पॉट्स होते हैं वो बिल्कुल करीब की भी नहीं होने चाहिए, अगर वो करीब होंगे तो आपस में मिक्स हो सकते हैं. तो इस तरह स्मीयरिंग नहीं होनी चाहिए, स्मजिंग नहीं होनी चाहिए, और जो स्पॉट्स होते हैं वो ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए. अगर ज़ाहिर वो ओवरलैपिंग होगी, अगर उनकी स्मीयरिंग होगी, वो प्रॉपर्ली एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है उस तरह उनकी प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगी. वो हमें एक तरह से स्मीयर की फॉर्म में या क्लियर कट जो स्पॉट्स होते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं. सॉल्वेंट विच इज़ यूज्ड दैट इज़ अलाउड टू एवेपोरेट. जब हम ये सेपरेशन जब हम क्रोमेटोग्राफी कर चुके हैं तो तब की हम बात कर रहे हैं कि जो प्लेट है उसको सॉल्वेंट से रिमूव किया जाता है और उसको हम सॉल्वेंट को एवेपोरेट होने देते हैं, सो दैट वी डोंट हैव दैट सॉल्वेंट ऑन द प्लेट. एंड देन स्पॉट्स विच आर अप्लाइड दे शुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. हमने पहले भी डिस्कस किया, सो दैट वी हैव separate spots, they do not mix with each other and we do not have these smears or smudges or some other types of spots.